A very good morning, everyone. So, let us now move further in our topics. In our last class, we have already seen some of the operators, and they were like OR operator and also the AND operator. These were the operators that we have seen in our last class. The OR operator, as it was already explained, we can say that OR operator means in Hindi we can say अथवा, है ना. अथवा मीन्स या तो ये या तो वो, एनी वन ऑफ बोथ, है ना. एंड ऑपरेटर in Hindi it means what? It means or, means both should be true. So on the basis of that we have already seen what all values will be coming if one of the value is false and the other value is also false, so definitely the output will be false. But if any one value is true, then also it will be false because it is AND operator. And operator, generally what it depicts, it depicts that both the values should be true. I explained this to you with an example of Ramesh and Suresh. If both of them will be present to our class, then only I will teach, otherwise I will not. So in this case, if it is AND operator, so both of them should be present in the class, otherwise I won't be teaching at all. The opposite will be the case with the OR operator. OR operator says that if either of Ramesh or Suresh, if any one of these is present, then I will teach, otherwise I will not. So now moving further in our topics, and we are moving towards the next topic, which is the NOT operator. Not, from the name itself you can understand, if the value is true, so what will be the NOT operator? The NOT operator will be false, means it will be giving always the opposite value of the operator. All right, so this you can see over here, the boolean NOT operator works on a single operand. Over there on the OR operator and on the AND operator, there were two values, है ना, x and y, and we compared both the values and we came to a conclusion whether it will be true or false. But this is not the case with NOT operator. NOT operator generally works on a single expression or a single operand, means there will be only a single value on which this NOT operator will be performed. Either it will be not x, not y, not z, whatever it may be, but it will be a single value or single operand on which this value will be performed. Next, what it is explaining, the logical NOT operator negates or reverses the value of the expression following, है ना. यहाँ पर क्या होता है, ये वैल्यू को नेगेट कर देता है या वैल्यू को रिवर्स कर देता है. मतलब अगर आंसर ट्रू आ रहा है, सो इट विल रिवर्स द वैल्यू टू बी फॉल्स. अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो नेगेट कर देगा और उसको ट्रू कर देगा. लेट अस सी विद सम ऑफ द एग्जांपल्स. द वैल्यू गिवन इज नॉट 5. So over here they are explaining that 5 is not 0, है ना. The 5 is a non-zero value. So 5 we will consider that it is non-zero, so it is true. Now if 5 is true, so what will be not 5? So not 5 will definitely be false. Again, let us see the next example. Not 0. 0 is what? 0 is considered to be false. It is neither non-zero, neither negative, neither positive. So it is 0. 0 means false. So what will be not of 0? So not of 0 will definitely be true. Next, not of -4. So -4 is non-zero. Is it 0? No, it is not. So it is non-zero. It is non-zero means it is already true value. So what will be not of -4? So not of 4, -4 will be opposite of true. So that is false. Only when the value is 0, then you can say that value is neither positive nor negative. So 0 means false,
and if we will consider not of 0, so not of 0 will be true, otherwise all the possible answers will be false. alright, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ 0, not of 0 will be true, other than this all the values, not of 1, not of 2, not of -1, not of -2, not of -3, everything will be false. एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या 5 2 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, ट्रू. अब इसका नॉट निकालना है, नॉट निकालना है ट्रू का, तो आंसर क्या आ जाएगा? जब नॉट निकालोगे ट्रू का तो आंसर आ जाएगा ना फॉल्स ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 9, क्या 5 9 से बड़ा है? क्या आंसर आया आपका? फॉल्स आया. सिर्फ ये ब्रैकेट वाली टर्म्स का आंसर क्या आया? फॉल्स. और इस फॉल्स पे लगाना है आपको नॉट. जब आपने इस फॉल्स पे नॉट लगाया तो आंसर क्या आ गया? अल्टीमेटली द आंसर विल बी ट्रू. सो दिस इज व्हाट अ नॉट ऑपरेटर जनरली डू. ऑलराइट, okay, so let us now move further. Now there is one more concept which is given to us, that is known as chained comparison operators. What is this chained comparison operators? So in this chained comparison operators, Python generally does what? It generally we can say makes a chain of two different expressions. These are two different expressions, so making a chain means combining both of them. वो दोनों को क्या करेगा? एक चेन बना देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा. सो दिस इज चेन्ड ऑपरेशन. फॉर एन एग्जांपल इट इज गिवन लाइक 1 इज लेस देन 2, ये एक वैल्यू है आपके पास, और दूसरी वैल्यू है 2 इज लेस देन 3. तो आप इस वैल्यू को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हो, 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3. सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू अ चेन्ड comparison operator. Means you can chain them, you can combine them, you can link them. So that linking is known as chained comparison operator, as simple as that. There are two expressions, they have converted these two expressions into a one expression, into an one expression, and that will be written in this way. Alright, so you can see the example, 1 is less than 2 is less than 3 is equivalent to 1 is less than 2 and 2 is less than 3, है ना. तो ये इसके इक्विवेलेंट है. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. दिस इज 11 इज लेस देन 13 इज ग्रेटर देन 12. सो दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू व्हाट? 11 इज लेस देन 13 एंड 13 is greater than 12. This expression is similar to this, but they have done what? They have just made it a chained comparison operator, used a chained comparison operator. So this and this are the same values. What will be the answer? क्या 11 13 से छोटा है? हाँ है. क्या 13 12 से बड़ा है? हाँ है. दोनों आए हैं, रमेश भी आया ट्रू, सुरेश भी आया ट्रू, तो अल्टीमेटली आंसर भी क्या आएगा? ट्रू. रमेश भी आया, सुरेश भी आया, तो हम पढ़ाएंगे ना, तो आंसर आया अल्टीमेटली ट्रू. यहाँ भी ट्रू आ रहा था, यहाँ भी ट्रू आया, मीन्स दे आर बोथ इक्विवेलेंट, है ना. नेक्स्ट कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स दिए हुए हैं. बिटवाइज ऑपरेटर्स मतलब क्या होते हैं? सिंपली जो हमने ऑपरेटर्स देखे यहीं पर, ये भी वही ऑपरेटर्स हैं, बट ये कुछ बिट्स पे, मतलब कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर अप्लाई होते हैं, तो इनको बिटवाइज ऑपरेटर्स बोलते हैं. बिट मतलब क्या? 0 और 1, है ना. बिट मतलब 0 और 1, तो 0 1 पे जब ये अप्लाई होते हैं तो उनको बोलते हैं बिट्स. अल्टीमेटली एवरी वैल्यू इज़ अ बिट. 11 12 13 14, ईच वैल्यू इन कंप्यूटर जनरली गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स बाइनरी फॉर्म, है ना. वो उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना अल्टीमेटली. तो ऑल द वैल्यूज आर व्हाट? दे आर अल्टीमेटली व्हाट? दे आर अल्टीमेटली अ बिट. तो यहाँ पर ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है? यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर इन बिट्स पर काम करता है. एंड क्या करेगा? तो एंड हमको पता है कि जब दोनों की वैल्यू ट्रू हो तभी आंसर ट्रू आता है. दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स आता है, ये हम जानते हैं. और ऑपरेटर एक और दिया हुआ है, तो और ऑपरेटर के बारे में भी हमको क्या पता है कि पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है. रमेश आया, सुरेश नहीं आया, बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक भी आएगा तो हम पढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा ट्रू. दोनों ही नहीं आए तो किसी को पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता, तो आंसर आता है फॉल्स. दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है. ठीक है. अब यहाँ पर एक और ऑपरेटर दिया हुआ है एक्स और, जिसको पीछे बताया हुआ है
और एक दिया हुआ है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों को हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर तो हमको क्लियर है, जब दोनों ही नहीं आए तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। दोनों में से कोई एक आया है, बीच में लगा हुआ है एंड, मतलब और, हिंदी का और, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का आना ज़रूरी है। दोनों नहीं आए तो हम नहीं पढ़ाएंगे। रमेश आया सुरेश नहीं आया, नहीं पढ़ाएंगे। रमेश भी आया सुरेश भी आया, हाँ अब हम पढ़ाएंगे। तो ये हम एंड ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। सिमिलरली फॉर और ऑपरेटर, रमेश और सुरेश दोनों नहीं आए, वी वोंट बी टीचिंग। रमेश नहीं आया, सुरेश हैज़ कम, सो वी वुड बी टीचिंग। रमेश आ गया सुरेश नहीं आया, पढ़ाएंगे। दोनों आ गए फिर तो डेफिनेटली पढ़ाएंगे। तो ये एंड और ऑपरेटर का कंसेप्ट तो हम बखूबी जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसको हम देखते हैं। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को कैसे डिनोट किया जाता है, तो ऐसे डिनोट किया जाता है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या होता है, इफ द टू ऑपरेंड बिट्स आर डिफरेंट द आंसर इज 1, otherwise the result is 0. Let me make all the combinations 0 0 1 1 0 1 0 1. So these are all the combinations। और आपको अगर इस पर और ऑपरेटर लगाना है तो और ऑपरेटर जब लगेगा तो देखो इसने क्या बोला है, when two operand bits are different the result is 1। जब वैल्यूज डिफरेंट होंगी तब इसका आंसर आएगा 1। तो क्या यहाँ पर 0 और 0 दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, नहीं, तो आंसर आएगा 0। क्या 0 और 1 दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हाँ है, तो आंसर आएगा 1। क्या 1 और 0 दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हाँ, तो आंसर आएगा 1। क्या 1 और 1 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, नहीं, तो आंसर आएगा 0। तो ये होता है एक्स और ऑपरेटर। जनरली इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट टू बी 1 or to be true when both the operand bits are different। तो ये एक्स और का लॉजिक होता है। एक्स और आपको क्या करना है, सिर्फ इनके टेबल्स ध्यान रखना है कि इनके टेबल्स कैसे बनते हैं। जनरली आप लोगों को टेबल्स बनाने को आ सकते हैं कि एक्स और का टेबल बना के बताओ। तो ये देखो एक्स और का टेबल इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। 0 0 सेम थे तो 0 आ गया, 0 1 डिफरेंट बिट्स थी तो 1 आ गया, 1 0 डिफरेंट बिट्स थी तो 1 आ गया, 1 और 1 सेम बिट्स थी तो 0 आ गया। तो इस तरीके से ये आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक बिन ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू का वैल्यू की, जैसे कि 13 है, 13 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप लगा दो बिन फंक्शन। तो क्या होगा, 13 की ऑटोमेटिक जो भी बाइनरी वैल्यू होगी, जैसे कि होती है 0 0 0 0 1 1 0 1, तो ये उसकी बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट कर कर आपको दे देगा। ठीक है, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस या बाइनरी फंक्शन याद रखना बस कि वो बाइनरी बिन फंक्शन जो होता है उसको बाइनरी फंक्शन बोलते हैं, जो कि वैल्यूज़ की बाइनरी में कन्वर्जन करके देता है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज़ अगेन समवॉट सिमिलर टू नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर की खासियत क्या थी, वो 1 ऑपरेंड पे ही काम करता था, एक ही ऑपरेंड पे काम करता था। सो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो विल बी वर्किंग ऑन अ सिंगल बिट ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, अब एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा तो इनको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी मतलब जो सिंगल यूनिट पे काम करते हैं उनको यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि मेरे ऑपरेंड की वैल्यू है 0, तो कॉम्प्लीमेंट कर देगा उसका, मतलब उल्टा कर देगा, तो 0 का आंसर 1 आ जाएगा। अगर आपकी वैल्यू है 1 तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो उल्टी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे जो हमको पता होना चाहिए। इनके बारे में क्या पता होना चाहिए, तो इनके टेबल्स पता होना चाहिए कि इनके टेबल्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रीसीडेंस। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कोई इक्वेशन है, मैं लिख के बताता हूँ, फिर ब्रैकेट नहीं लगा था, 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 3 - 5। अब ये एक इक्वेशन लिख दी। अब इसके आंसर हर कोई अलग अलग निकाल सकता है ना। अब मैं अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ तो फिर कोई अलग आंसर निकाल सकता है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ तो फिर कोई अलग आंसर निकाल सकता है, बट अलग अलग आंसर ना निकलें। सो फॉर दैट वी हैव वन रूल इन मैथ्स विच इज नोन एज BODMAS। What does it say? We have to first open the brackets and then we have to divide, multiply, add and subtract. So this is the order 1 2 3 4 5 6 in which order we have to do the calculations. So that is given by BODMAS। जब बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो जाते हैं किसी एक ही एक्सप्रेशन में, तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा वो BODMAS बताता है।
सिमिलरली देयर इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पर भी कुछ चार्ट है जो हमको ये नीचे दिया हुआ है, ये एक चार्ट है, यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना होता है। तो ये भी ऑलमोस्ट बॉडमैस जैसा ही होता है। सबसे बड़ा होता है ब्रैकेट, हमको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अगला दिया हुआ है इनटू और इनटू। इनटू और इनटू का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। मतलब मैं अगर ऐसा लिख दूँ 3 इंटू इंटू 2, तो इसका मतलब है 3 की पावर में 2, और इसका आंसर क्या आएगा, आएगा 9। तो ये आपको याद रखना है, 2 बार इंटू का साइन लगता है तो वो 3 इंटू 2 6 नहीं आएगा, वो 3 इंटू इंटू 2 आएगा, 3 की पावर 2 जो कि आएगा 9। और अगर 3 इंटू 2 होता तो आता 6। ठीक है। अगला होता है नॉर ऑपरेटर, मतलब कि नेगेशन ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली पाइथन के अंदर मल्टीप्लाई, ये जो स्टार का साइन बना है वो, और उसके बाजू में बना है डिवाइड का साइन ये, और फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, ये 4 जो ऑपरेटर्स हैं इनको एक ही रैंक दी हुई है। ठीक है। अब जब एक ही रैंक दी हो तब क्या करना है और कैसे करना है वो अब अभी हम आगे समझेंगे। पर अभी ये ध्यान रखो, इन सब की रैंक एक ही है। आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले मल्टीप्लाई कर दूं क्या, पहले डिवाइड कर दूं क्या, नहीं। यहाँ पर दोनों की रैंक सेम है, दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं पाइथन में। तो इनकी रैंक जब सेम है तो यहाँ पर हम कुछ भी पहले कर सकते हैं, पर क्या पहले करेंगे ये हमको आगे पता चलेगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, इनकी रैंक सेम है। सिमिलरली प्लस और माइनस, पहले प्लस करें या माइनस करें ये कैसे डिसाइड करेंगे ये भी आगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी रैंक भी सेम है। माइनस भी पहले कर सकते हो, प्लस भी कैसे पहले कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट डिपेंड करेगा, आपके ऊपर ज़रूर है, बट यू हैव टू यूज़ सम लॉजिक। और ये सब ऑपरेटर्स जो होते हैं इन सब को उसके नीचे ऑर्डर में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इतना देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक इक्वेशन देखते हैं। देखो यहाँ पर लेस देन का ऑपरेटर लगाया, प्लस का साइन लगाया, लेस देन का ऑपरेटर लगाया, ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ लगाई हुई हैं। तो इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब कभी ऐसा हो जाए, है ना, जब कभी ऐसा हो जाए कि जहाँ पर सेम प्रेसिडेंस वाली वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है, सेम प्रेसिडेंस मतलब कि जैसे कि मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, जब ये सारी वैल्यूज़ आपके किसी एक्सप्रेशन में आ जाती हैं, अब इनका प्रेसिडेंस तो सेम है, मतलब ये सेम रैंक पे लाए करते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करें कि पहले हम डिवाइड करें कि पहले हम रिमाइंडर निकालें, हाउ यू विल डिसाइड? सो द वेरी सिंपल एंड ईजी रूल फॉर दैट इज दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो साइन पहले दिख जाए वो काम पहले कर दो। लेफ्ट से राइट की तरफ यू हैव टू मूव, एंड विच एवर साइन यू सी फर्स्ट यू हैव टू डू दैट ऑपरेशन। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। एसोसिएटिविटी मतलब कि आपके ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को ये डिटरमाइन करता है, इसको एसोसिएटिविटी कहा जाता है। ठीक है। Associativity is the order in which an expression having multiple operators of same precedence is evaluated। तो एक चीज़ हमको पता चल गई कि जब सेम रैंक के हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमको उनका किस ऑर्डर में प्रेसिडेंस लेना है, तो लेफ्ट से मूव करना है राइट की तरफ। जो ऑपरेटर पहले आ जाए उस ऑपरेटर को पहले यूज़ कर लो। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ब्रैकेट सॉल्व करें कि बॉड मास लगाएं कि क्या करें, नहीं। अगर सेम रैंक है और आपको याद है कि इनकी रैंक सेम है तो आप कोई भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, आप सिंपली लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और लेफ़्ट वाला जो भी ऑपरेटर होगा दैट फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन विल बी परफॉर्म द अदर वैल्यूज़। ये तो हो गया इसके लिए। एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। एक एक्सेप्शन ये है कि जब कभी पावर वाला ऑपरेटर आए, जैसे 2 इंटू इंटू 3, ये जो होता है ना, ये वाला 2 की पावर 3, तो 2 का क्यूब होता है 8, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी ये वाला ऑपरेटर आता है इंटू इंटू, तो इस ऑपरेटर का काम खास है।
जब ये ऑपरेटर आता है तो यही एक ऐसा ऑपरेटर है जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2 × 3 × 2 अगर मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का पावर निकालूंगा और जो भी आएगा उसको इससे करूँगा। जैसे कि 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये हो गया 9 और यहाँ पे 2 था तो 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 जो भी होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ये वाला साइन आता है तो इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट होती है। सिर्फ इनटू और इनटू की जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सॉरी, हाँ, यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्लोर डिवाइड तीनों के तीनों सेम रैंक में लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्लोर डिवाइड है ना, ये सेम रैंक में लाई कर रहे हैं। अब जब कोई चीज़ सेम रैंक में लाई कर रही है तो कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि पहले 8 को 5 से डिवाइड कर दूं क्या, फिर फ्लोर डिवीजन कर दूं क्या, फिर 7 से मल्टीप्लाई करूं क्या। नहीं, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है। सिंपली आप लोग क्या करेंगे, जो पहले दिख गया वो कर देंगे। 7 8 ज़ा 56, 56 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इंटीजर वैल्यू है तो डेसिमल हट जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। और 11 को जब आप फ्लोर डिवाइड करोगे 2 से, ये फ्लोर डिवाइड का जो साइन होता है, फ्लोर डिवाइड का मतलब होता है कि डिवाइड कर दो और डेसिमल वैल्यूज़ को हटा दो। तो जब आपने 11 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 5.5। ठीक है, अब डेसिमल को हटाना है। ये जो फ्लोर डिवीजन होता है ये बोलता ही है कि डेसिमल वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ठीक, जैसे ये होता है ना, ये मल्टीप्लाई की पावर होती है 2 का क्यूब, इसको बोलते हैं। जैसे 2 × 3 है ना, तो ये कहलाएगा 2 का क्यूब। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हो 5 फ्लोर डिवीजन 2, तो 5 फ्लोर डिवीजन 2 का मतलब है कि 5 को 2 से तो डिवाइड करना है। आंसर क्या आया, 2.5 आया। बट फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि डेसिमल वैल्यूज हटा दो, तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2। ठीक, सो 2 विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा दे दिया है आप लोगों को, ब्रैकेट्स वैकेट्स दे दिया है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको सॉल्व ही करना है। ठीक, 8 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 आया। 1 को 2 से फ्लोर डिवाइड किया तो इतना पूरा 0 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 का फ्लोर डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 0.5। डेसिमल वैल्यू हट जाएगी, बचा क्या, 0। 0 में कुछ का भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 का क्या 7000 का कर लो, आंसर 0 ही आना है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 0 आंसर आपका प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरीके से आप लोग फ्लोर डिवीजन कर सकते हो। ये देखो, ये जो बोल रहे थे हम, ये वाला, ये रहा 3 × 3 × 2, इसका मतलब है 3 की पावर 2 पहले ये सॉल्व होगा पीछे का, तो ये हो गया 9। और 3 की पावर 9 जो भी होता है वो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये पहले इसको सॉल्व करेगा, उसके बाद उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देगा। बट अगर आपको ऐसा दे दिया तो यहाँ पर रूल क्या बोलता है, यहाँ पर ब्रैकेट की पावर तो सबसे ऊपर होती है, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे ऊपर है। तो पहले 3 का क्यूब निकलेगा, 3 3 9 3 27, और फिर 27 का स्क्वायर निकलेगा जो कि होता है 729। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर प्रोड्यूस होगा। अगर ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगा दिया गया है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं लगाया है तो ये दो पहले सॉल्व होंगे, फिर बचे हुए पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आगे बढ़ता है। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो एक्सप्रेशंस आप सिंपली बोल सकते हो कि हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा कोड हमने जो लिख दिया, जो कि जैसे कि a+b-3 × 2, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वैलिड सेट ऑफ ऑपरेटर्स का मैंने इस्तेमाल किया। जिनमें मैं कुछ वैलिड सेट ऑफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कुछ एक कोड लिख दूं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। डेफिनेशन समझते हैं हम। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एटॉम्स।
एन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस, है ना, बहुत सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकते हैं। एटम्स एक नई टर्म आई यहाँ पर। एटम्स मतलब क्या? तो एटम्स सिंपली क्या हो सकता है कि एटम्स आर समथिंग दैट हैव वैल्यूज़। एटम क्या है? सिंपली कोई ऐसी चीज़ जो एक वैल्यू है ना, जिसमें कुछ वैल्यू है या कुछ वैल्यू होती है। स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, जो भी सारी चीज़ें होती है ये सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो ये एक एटम है। और ऐसे बहुत सारे एटम, जैसे कि 3 एक एटम है, 2 एक एटम है, 4 एक एटम है, इसमें यहाँ प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो इन एटम्स पे कुछ ऑपरेटर्स परफॉर्म हुए हैं ना, तो ये कहलाएगा आपका क्या? एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हम देखते हैं, नीचे दिया होगा। हाँ, ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। सिंपल है कि नहीं? यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स लगे हुए हैं और कुछ ऑपरेंड्स लिखे हुए हैं, तो ये एक्सप्रेशंस हो गए। अब एक्सप्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो ये देखो, नाम से समझते हैं हम। एक हो सकता है एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या होंगे? आपके सारे नंबर्स वाले कैलकुलेशंस होंगे, जिसमें इंटीजर, फ्लोट्स और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अगला है रिलेशनल एक्सप्रेशंस। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस वो होंगे जिसमें कुछ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होंगे। ये दिख रहे हैं, हमने पढ़े थे पिछले पेज पे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन तो जो और, एंड, नॉट, और नॉट, अलग अलग ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। और अगला स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, ये एक थोड़ा सा नया है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लस और एक होता है इनटू। ये दो चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस के अंदर। जैसे कि मैंने लिख दिया हाई प्लस पाइथन, मैंने लिख दिया हाई प्लस पाइथन, तो स्ट्रिंग के साथ जब प्लस का साइन लग जाता है तो ये क्या कर देता है? इन दोनों को जोड़कर लिख देता है हाई पाइथन। तो अल्टीमेटली आंसर आता है ये जो नीचे लिखा मैंने। ये क्या कर देगा? दोनों को जोड़ देगा। हाई प्लस पाइथन अगर आप मतलब एडिशन करोगे स्ट्रिंग पर, अब नंबर पे होता तो 2 + 3 तो 5 आ जाता, है ना, पर ये तो स्ट्रिंग पे किया आपने। जब स्ट्रिंग पे आप ये प्लस ऑपरेटर लगाते हो तो वो दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देता है। और ये जो प्लस ऑपरेटर होता है, इस प्लस ऑपरेटर को एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। दो स्ट्रिंग्स को जब जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। सिमिलरली एक और ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है। रेप्लिका सुना होगा ना, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, उसको बोलते हैं रेप्लिका। तो ये जो है स्टार, इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहा जाता है। रेप्लिकेशन ऑपरेटर तब लगाया जाता है जब एक स्ट्रिंग हो और एक इंटीजर हो। जब आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है और एक इंटीजर वैल्यू होती है तो आप रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने वैल्यू डाली हाई और यहाँ पर इंटू लगा दिया 3। जब मैंने हाई इंटू 3 किया, जब यहाँ पर अगर नंबर होता 2 × 3 होता तो 6 आ जाता, पर स्ट्रिंग पर आपने इंटू 3 किया ना, तो ये क्या करेगा? हाई को 3 बार डुप्लीकेट बना देगा। तो हाई, उसके बाद फिर से हाई इन कंटिन्यूएशन में, और हाई, हाई, हाई और हाई, 3 आउटपुट, ये 3 वैल्यू, ये 3 बार इस हाई को ये प्रिंट कर देगा, मतलब कि ये उसको रेप्लिकेट कर देगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एंड और देन के बीच में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा है तो आंसर आया एंड देन। एंड और टू के बीच में रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगा है तो आंसर आया एंड एंड, क्योंकि एंड की वैल्यू कितनी बार लिखना है? तो 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर एंड एंड आपका आंसर आ जाएगा। ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है ये एक अलग से चैप्टर नंबर 7 में कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इवेल्युएट कैसे करें इन एक्सप्रेशंस को? बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, इनटू भी है, डिवाइड भी है। इसको इवेल्युएट कैसे करें, है ना? कुछ भी हो सकता है यार, इवेल्युएट करना है, क्योंकि देखो क्या होता है अल्टीमेटली, जैसे कि मैंने लिख दिया 3
प्लस 2.5 इंटू 7। अब यहाँ पर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये फ्लोट ले लिया मैंने, है ना। ये इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, पर ये तो फ्लोट वैल्यू हो गई। अब जब आप इन तीनों एक्सप्रेशन पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हो, 3 प्लस 2.5 इंटू 7, जब आप ऐसा कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? एक ही वैल्यू आ रही है। जैसे 3 प्लस 2.5 5.5, 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा 35, मतलब कि 38.5 39 के समथिंग कोई वैल्यू आई। अब जो 39 आपके पास वैल्यू आई वो इंटीजर है या फ्लोट है, ये कैसे इवेल्युएट करोगे आप? समझ रहे हो लॉजिक? समझ रहे हो? मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ किए हुए हैं, कहीं पर इंटीजर है, कहीं पर कैरेक्टर है, कहीं पर न्यूमेरिक्स में फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग आपके पास डेटा टाइप्स यूज़ किए हुए हैं, तो अब आप उसको इवेल्युएट कैसे करोगे? अल्टीमेटली आंसर तो किसी एक ही डेटा टाइप में आ सकता है, या तो इंटीजर में, या तो स्ट्रिंग में, या कुछ में। तो यहाँ पर इन्होंने इस कन्वर्जन के लिए हमको एक तरीका बताया है। यहाँ पर जनरली दो तरीके होते हैं, एक होता है इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लीसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन क्या करता है? ये हमारे किसी भी जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को किसी एक डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशंस थे जिसमें अलग अलग डेटा टाइप यूज़ हो रहे थे। ठीक, अब अलग अलग डेटा टाइप यूज़ हो रहे थे तो अल्टीमेटली आंसर तो किसी एक ही डेटा टाइप में आना है। अब जब आंसर किसी एक डेटा टाइप में आना है तो ये डिसाइड कौन करेगा कि वो डेटा टाइप है कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो ये इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन है जिसको कोअर्जन भी बोलते हैं, ये इम्प्लीसिट है। इम्प्लीसिट का मतलब होता है इंटरनल। अब जब ये इंटरनल है तो हम तो एक्सटर्नल पर्सन है, जब ये इंटरनल है तो किसी एक्सटर्नल पर्सन की ज़रूरत है क्या इसको? तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है इसमें हम जैसों की या प्रोग्रामर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक जब आप 3 प्लस 2.5 इंटू 7 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर को ये ऑटोमेटिकली किसी एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट करता है ये हम देखते हैं। डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को कोअर्जन बोलते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या करता है? विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब हमारी ज़रूरत के बिना, इम्प्लिसिटली मतलब इंटरनली, ये क्या करता है? एक डेटा टाइप अलॉट कर देता है आपके आंसर को। आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप लोग यहाँ पर डिसाइड करो कि कौन सा डेटा टाइप इसको देना है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली अलॉट कर देता है। अब ये कैसे करता है तो देखो, Python converts all operands up to the type of the largest operand। इसको टाइप प्रमोशन कहते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है? बड़े ऑपरेंड की तरफ बढ़ता है। जैसे कि मैंने कैरेक्टर इस्तेमाल किया, इंटीजर इस्तेमाल किया और फ्लोट इस्तेमाल किया। तो रैंकिंग वाइज देखें तो कैरेक्टर सबसे छोटा होता है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है। इंटीजर कैरेक्टर से बड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फ्लोट कैरेक्टर और इंटीजर दोनों से बड़ा होता है, ये ज़्यादा ऑक्यूपाई भी करता है और इसमें थोड़ी ज़्यादा रेंज की वैल्यूज़ आ सकती है। तो फ्लोट उससे बड़ा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? लार्जेस्ट ऑपरेंड की तरफ बढ़ेगा। अब मैंने सी भी यूज़ किया था, मतलब कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। मेरा लार्जेस्ट ऑपरेंड क्या है? मेरा लार्जेस्ट ऑपरेंड है फ्लोट। तो ऑटोमेटिकली ये टाइप कन्वर्जन जो भी आंसर प्रोड्यूस करेगा वो फ्लोट में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मैंने 1, 2 और 3 डेटा टाइप्स यूज़ किए थे, उसमें से सबसे बड़ा फ्लोट था। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, CH, I और FL, ये 3 आपके पास वेरिएबल है, उनके अंदर वैल्यूज़ हैं 5, 2 और 4। ये तीनों क्या है? इंटीजर है, यहाँ पर इन्होंने लिख कर बताया। ठीक है, CH, I और FL इंटीजर्स हैं।
DB एक फ्लोट है 5.0, FD 36.0 ये भी एक फ्लोट है। अब क्या किया इसने, यहाँ पर लगाया एक एक्सप्रेशन, ये एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लगाया CH प्लस आई। अब यहाँ पर हम आंसर नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है। CH और I दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हैं, देखो ऊपर लिखा है। CH I और FL तीनों के तीनों इंटीजर हैं, ठीक है, याद रखना CH I और FL। तो CH और I दोनों इंटीजर हैं, तो जब CH और I को ऐड करोगे, इंटीजर और इंटीजर को ऐड करोगे, तो आंसर तो इंटीजर में ही आएगा। इस इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो DB से, DB क्या है, DB एक फ्लोट है, तो इसको फ्लोट से डिवाइड कर रहे हो। अब इंटीजर और फ्लोट में बड़ा क्या, तो फ्लोट, तो अल्टीमेटली जो A की वैल्यू आएगी वो A की वैल्यू आएगी फ्लोट में। तो ये हमको इस एग्जाम्पल से समझने को मिलता है। CH और I तो इंटीजर इंटीजर थे, तो अल्टीमेटली इसका आंसर इंटीजर में आया। ये DB जो था ये फ्लोटिंग पॉइंट था। अब जब इंटीजर और फ्लोट को जोड़ेंगे तो बड़ा क्या है, फ्लोट, तो आपका जो अल्टीमेटली A की वैल्यू आएगी वो A की वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू रहेगी। इसका इन्होंने कैलकुलेशन भी करके बता दिया, तो आंसर आया 1.4। सेकेंड एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये B इज इक्वल्स टू FD अपॉन DB, इसको ऊपर ही समझ लेते हैं। FD और DB दोनों फ्लोट है ना, देखो FD और DB दोनों फ्लोट है, तो FD और DB को डिवाइड किया तो आपका फ्लोट में आंसर आया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, CH डिवाइडेड बाय 2। CH हमारा इंटीजर था, इंटीजर को 2 से डिवाइड किया तो भी 2 भी एक इंटीजर ही है, तो ये आंसर आया इंटीजर। और फ्लोट और इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लोट बढ़ा कि इंटीजर, तो फ्लोट बढ़ा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, फिर से फ्लोट में आएगा। तो जो B की वैल्यू है वो B की वैल्यू भी फ्लोट में रहेगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है और आप इसको यहाँ पर एग्जाम्पल्स में समझ सकते हैं। ये दोनों फ्लोट थे तो फ्लोट का आंसर फ्लोट। CH डिवाइडेड बाय 12, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही आएगा। और फ्लोट और इंटीजर में क्या बड़ा है, तो फ्लोट और इंटीजर में फ्लोट बड़ा है, तो अल्टीमेटली आंसर आपका फ्लोट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको कोवर्जन भी बोलते हैं, इस तरह से ये कोवर्जन वर्क करता है। इसका आंसर भी निकाल के बताया हुआ है इन्होंने, और ऐसे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको आंसर बताना है, तो ये एग्जांपल्स यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन द इनपुट्स आर, आपको आउटपुट बताना है। A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 23, C की वैल्यू है 23। आपको आउटपुट बताना है A इज़ लेस देन B, 10 इज़ लेस देन 23। क्या 10 23 से छोटा है, आंसर आया ट्रू, तो पहला आंसर आ जाएगा ट्रू। B इज़ लेस देन और इक्वल टू C, क्या 23 23 से छोटा है, नहीं है, पर क्या 23 23 के बराबर है, हाँ है, तो अगले का आंसर भी आ जाएगा ट्रू। अगला A इज़ लेस देन B इज़ लेस देन और इक्वल टू C, तो A इज़ लेस देन B, 10 23 से छोटा है, हाँ है, और क्या 23 23 के बराबर है, हाँ है, तो तीसरे का आंसर भी आ जाएगा ट्रू। तो अल्टीमेटली तीनों आंसर आपके ट्रू आ जाएंगे, ठीक। और अगर आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर लो, A की वैल्यू कर दो 23 और बचे हुए 2 की वैल्यू कर दो 10, अब सॉल्व करोगे तो फॉल्स ट्रू फॉल्स आंसर आएगा। ये यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर कर बताया। अब इवेल्युएटिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पर इन्होंने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी इवेल्युएट करना यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये भी सिंपली जैसा हमने अभी देखा उसी तरीके से ये भी वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, 3 इज़ लेस देन 5 और 5 इज़ लेस देन 2, क्या 3 5 से छोटा है, हाँ है, क्या 5 2 से छोटा है, नहीं है, बीच में क्या लगा है, और रमेश आया सुरेश नहीं आया, मैं तो पढ़ाऊँगा, और लगा हुआ है बीच में, तो आंसर आएगा अल्टीमेटली आपका ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से ये इवैल्यूएशन किए जाते हैं, ठीक। हाँ, जस्ट अ मिनट।
ठीक, हमने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देख लिया जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर अपने आप डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। एक दूसरा और होता है, उसको क्या बोलते थे, कोवर्जन, है ना। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को कोवर्जन बोलते थे। एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, उसको कोवर्जन बोलते थे, इसको टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है, याद रखना। अब जब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कंपाइलर खुद ही डेटा टाइप डिसाइड कर रहा था, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही थी, तो आप भी खुद ही समझ सकते हो कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता होगा। सो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन डिसाइड करता है कि फाइनल आंसर का डेटा टाइप क्या आएगा। तो ये कैसे डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करने के लिए जो भी आपका एक्सप्रेशन लिखा होता है उस एक्सप्रेशन के आगे बस आपको डेटा टाइप लिख देना होता है। जैसे कि आपका वैल्यू है 2 + 2.5 × 7। अगर ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता तो फ्लोट आ जाता, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट। अब क्या होगा, जब मैंने आगे ब्रैकेट में इंट लिख दिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी आंसर लाएगा ये उसका इंटीजर डेटा टाइप में ही आंसर लिखेगा, वह फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया इंट बी। अब b की वैल्यू क्या है 5.0, तो ऑटोमेटिकली इंट को इंट b कर दिया तो 5.0 की बजाय वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब अब वो फ्लोट से बदल कर क्या हो चुकी है, अब वो फ्लोट से बदल कर इंटीजर हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम खुद भी टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किसी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो INT और नंबर, फ्लोट में करना हो तो फ्लोट और नंबर, कॉम्प्लेक्स में करना हो तो कॉम्प्लेक्स और ब्रैकेट में नंबर, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग और ब्रैकेट में जो भी आपका नंबर है वो, तो वो उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देगा। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई थी। टाइप कास्टिंग के कुछ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5/2। अब इसको मैंने बोल दिया कि इसको इंट रखना है, तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.5। पर क्या इंट में 2.5 स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंट की लिमिटेशन है कि वो डेसिमल के बाद की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। तो अब जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे और बोलोगे कि इसका हमको टाइप कास्टिंग इंट में करना है, तो आंसर अल्टीमेटली 2 ही आएगा, 2.5 नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट टू इंटीजर टाइप कन्वर्जन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ओरिजिनल वैल्यू मे बी आउट ऑफ रेंज फॉर टारगेट टाइप इन विच केस रिजल्ट इज अनडिफाइंड, है ना। कभी कभी कुछ ये वैल्यूज़ को गड़बड़ कर सकता है। लास्ट टॉपिक एक और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझो। पाइथन में क्या किया गया है, कुछ अलग से फाइल्स बना दी गई हैं। इन फाइल्स में पहले से कुछ वैल्यूज़ डली हुई हैं, कुछ पहले से कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं, ठीक है। पहले से कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं अलग अलग। इसमें कुछ कांस्टेंट, जैसे पाई, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इसके अंदर स्टोर करके रखी है। तो ऐसी बहुत सारी कुछ फाइल्स हैं जो पाइथन में बनी हुई हैं। अब इन जो फाइल्स को जो पाइथन ने बना के कहीं पर रखी हुई है, उन फाइल्स को बोला जाता है मॉड्यूल्स, ठीक। Modules are what? So module is a file which contains some variables and constants, some functions, objects, etc. defined in it, which can be used in other Python program by importing it. अब Python के पास ऐसे मॉड्यूल्स तो हैं, मतलब Python के पास कुछ फाइल्स तो हैं जो उसने पहले से बना के रखी हैं और जो और भी बहुत सारे अलग अलग काम करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब वो फाइल्स तो बनी हुई हैं, पर अब उन फाइल्स को आप आपके कंप्यूटर में, आपके पाइथन प्रोग्राम में कैसे यूज़ करोगे, तो उसको आपके पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए आपको उन फाइल्स को आपके कंप्यूटर में, आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है।
तो आपको लिखना होता है, प्रोग्राम जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पे लिखना पड़ता है इम्पोर्ट और स्पेस देकर लिखना होता है वो मॉड्यूल का नाम जो मॉड्यूल आप आपके पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको वर्किंग विथ मैथ मॉड्यूल बताया हुआ है। अब मॉड्यूल का नाम है मैथ, तो मैथ्स के कुछ फंक्शन यूज़ करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट मैथ, ऐसा लिखना पड़ेगा। इम्पोर्ट मैथ आप लिख दोगे जैसा नीचे लिख के बताया है, तो क्या होगा, जो मैथ नाम की फाइल थी वो आपके पाइथन प्रोग्राम में आ गई। उसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी, जो भी फंक्शंस थे और जो सारी चीज़ें थी, अब आप आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। और जो मैथ फंक्शन है देखो उसमें कितनी सारी फाइल्स है, एक है सील फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ एब्सोल्यूट फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग ऑफ 10 फंक्शन, पावर फंक्शन, साइन, कॉस, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशंस, टेन, डिग्री, रेडियन। तो ये कुछ अलग अलग आप कह सकते हो फंक्शंस हैं जो यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी, मैथ मॉड्यूल स्टोर करता है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सील फंक्शन क्या होता है, तो सील फंक्शन जैसे कि अपने छतों की सीलिंग होती है ना, तो ये सीलिंग की बात कर रहा है। और एक है फ्लोर, ये नीचे लिखा हुआ 5वें पॉइंट पर। सील और फ्लोर एक दूसरे के एकदम उल्टे। देखो कैसे, सील फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन नंबर। जैसे कि मैंने लगाया सील फंक्शन और ब्रैकेट में वैल्यू डाल दी 2.3, तो सील फंक्शन क्या करेगा, अगला जो बड़ा इंटीजर, सीलिंग ऊपर होती है, ऊपर होती है मतलब बड़ी होती है, तो अगला इंटीजर क्या आएगा, अगला इंटीजर 3 आएगा, तो ये सील फंक्शन आंसर जनरेट कर देगा 3। बट यहीं पर अगर लगा होता फ्लोर फंक्शन और ब्रैकेट में लिखा होता 2.3, फ्लोर होता है नीचे, नीचे मतलब छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू मतलब क्या, छोटी वैल्यू मतलब आंसर आएगा 2। सील बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करता है, बड़ा इंटीजर नंबर, और फ्लोर छोटा इंटीजर नंबर प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल वैल्यू प्रोड्यूस करना है तो 2.0 जैसे लिख दिया तो ये स्क्वायर में जनरेट करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोर फंक्शन देखो 1.03 थी, फ्लोर है मतलब नीचे है तो 1.0। नेगेटिव में क्या होता है, -1 के बाद क्या आएगा, तो -2 आएगा, तो यहाँ पर -2 को कंसिडर करेगा, है कि नहीं, ध्यान रखना। जब आप नेगेटिव साइड जाओगे तो पूरा उल्टा काम होता है। कुछ लॉग्स के फंक्शंस भी हैं और एक पावर फंक्शन भी है। पावर फंक्शन हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया math.pow, मतलब आपने मैथ लाइब्रेरी का पावर फंक्शन यूज़ किया, तो उसको लिखने का तरीका, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। अब फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पास करनी है, तो वो आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करनी होती है, उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। अब क्या पैरामीटर पास करा, तो देखो इनने क्या पास करा, 4.0, 2.0, मतलब 4 की पावर में 2.0, और 4 की पावर में जब 2.0 होगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, आंसर आएगा 16.0। तो ये आंसर आपको प्रोड्यूस करके देगा। कुछ मैथ्स के भी फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, डिग्री, रेडियन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी दिए हुए हैं। math.py अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, अप टू सम प्रिसीजन वैल्यू 15 डेसिमल पॉइंट तक की। math.e लगाओगे तो e की वैल्यू बता देगा 2.718281, जो भी आपकी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है वो यहाँ पर बता देगा। इसमें से बताना है कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये तो सारे के सारे वैलिड ही दिख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, ये सारे वैलिड ऑपरेशंस हैं। तो कुछ वैलिड के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कैसे लिख सकते हो। इनवैलिड के बारे में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर दो साइंस एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ पर q और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा। मैथ्स होता तो कर लेते, पर पाइथन को समझाना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए q और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। math.power, 0 की पावर में -1 कैसे हो सकता है, 0 की पावर में -1 तो हो ही नहीं सकता, है ना। 0/1 ऐसा कैसे लिख सकते हो,
ज़ीरो के अपॉन में तो कुछ लिख ही नहीं सकते हम, ज़ीरो अपॉन मतलब ज़ीरो अपॉन वन मतलब ज़ीरो ही आना है अल्टीमेटली, मतलब कि ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। और लॉग का नेगेटिव लॉग तो निकलता नहीं है, और उसमें भी पी बाई क्यू को ऐड करना है तो वो तो और पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बोला है कि आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैथ मॉड्यूल का यूज़ करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो लिख देंगे मैथ डॉट एक फंक्शन होता है एस क्यू आर टी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब एस क्यू आर टी फंक्शन लगा देते हैं। और एस क्यू आर टी फंक्शन लगा के लिख दिया ए डॉट ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके अंदर आ गया, एस क्यू आर टी फंक्शन के अंदर, मतलब अंडर स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरीके से ये एक्सप्रेशंस भी लिखे जा सकते हैं। एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करने के काम आता है। कहाँ कहाँ से रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करता है, तो एक होता है रैंडम फंक्शन। तो ये क्या करेगा, 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करना है तो आप ये रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रेंज है कि मुझे 1 से लेकर 5 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है आंसर में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रैंडम का RAND और इंटीजर, रैंडम इंटीजर 1,5। तो यहाँ पर वो 1 और 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रैंडम इंटीजर 2, 3, 4 जो भी है वो आपको जनरेट करके देगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, मतलब ये होता है रैंडम रेंज, RAND रेंज इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग एक रेंज बताते हो, जैसे मैंने लिख दिया 1,40,4, ये मैंने रेंज लगा दी, ठीक है, रैंड रेंज फंक्शन लगाया और ये रेंज लगा दी, मतलब 1 से लेकर 40 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, पर डिफरेंस कितने का रखना है, मतलब 4 का, मतलब कि 1 अगर कंसीडर कर रहे हो तो 3 छोड़ के अगली वैल्यू फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू आपको जनरेट करना है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। रैंडम फंक्शन, तो रैंडम फंक्शन लगाया तो रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी, और उसके नीचे यहाँ पर रैंडम इंट फंक्शन लगाया, 15 से 35 के बीच में कोई रैंडम इंटीजर जनरेट करना था, इसने 16 जनरेट कर दिया। रैंड रेंज फंक्शन क्या होता है, तो रैंडम रेंज जनरेट करेगा, तो 45 मैंने यहाँ पर दे दिया, तो 0 से लेकर 45, इसका मतलब ये हुआ अब 0 से लेकर 45 के बीच में कोई भी नंबर वो जनरेट कर देगा। 11 से लेकर 45 लिख दिया, तो अब 11 से लेकर 45 के बीच में कोई नंबर जनरेट करना है, इसने 25 कर दिया। सिमिलरली अगर आप ऐसी रेंज दे देते 11, 45, 4, तो इसका मतलब ये होता कि हर 4 छोड़कर, जैसे 11 फिर 4 छोड़े फिर 15 फिर 4 छोड़े फिर 19 फिर 23, 27, 31, 35, 39 और 43, इन वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, तो इसने यहाँ पर 15 करके बता दी। तो इस तरीके से ये रैंड रेंज, रैंड इंट और रैंडम फंक्शन काम करते हैं, ठीक। एक स्टैटिस्टिक्स फंक्शन भी होता है। स्टैटिस्टिक्स फंक्शन क्या करता है, तो स्टैटिस्टिक्स फंक्शन जो होता है वो आपकी वैल्यूज़ पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस लगाता है, जैसे कि मीन मतलब सारी वैल्यूज़ का एवरेज निकाल देगा। मीडियन मतलब क्या करेगा, कि सारी वैल्यूज़ का काउंट निकालेगा और ऊपर की कुछ वैल्यूज़ छांट लेगा, नीचे की कुछ वैल्यूज़ छांट लेगा, और जो बची हुई वैल्यू है उसको वो एज अ मीडियन प्रोड्यूस कर देगा, मतलब जो मिडिल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहा जाता है। और तीसरा है मॉड। मॉड का मतलब होता है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं मॉड। देखो फंक्शन लगा के बताया, एक ऐसी क्यू नाम की लिस्ट है, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 5, 9, 11, 12, 23, 5, ये वैल्यूज़ है उसके अंदर। इसके ऊपर हमने स्टैटिस्टिक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये एक हमारा मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, तो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का नाम तो लिखना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स डॉट क्या लगाया आपने, मीन फंक्शन लगाया, तो इन सारी वैल्यूज़ को उसने ऐड किया और कितने से डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 8.25। मीडियन निकालना था तो ऊपर कुछ वैल्यूज़ को ऊपर का पार्ट में रख लिया, कुछ वैल्यूज़ को नीचे के पार्ट में रख लिया, और जो वैल्यू बची उसको उसने मीडियन ले लिया, आंसर आया 6। सिमिलरली मॉड, तो मॉड क्या होता है मैंने बताया,
मॉड का मतलब होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो देखो 5 5 5 5 5 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास. द क्लास हैज़ बीन अ बिट लेंदी, बट आई होप यू विल बी बियरिंग विथ मी. आप लोग ये वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, सारे टॉपिक्स को समझें. हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है. तो आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है, और कुछ डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल राइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.